کورونا کے بڑھتے کیسز این سی او سی نے 24 اضلاع میں 4 سے 12 ستمبر تک تعلیمی ادارے، انٹرسٹی ٹرانسپورٹ بند، انڈور جمز اور ہر قسم کی تقریبات پر پابندی عائد کر دی۔ ان اضلاع میں اسلام آباد، راولپنڈی، لاہور، فیصل آباد، میانوالی، بھکر سمیت دیگر شامل ہیں۔ کورونا کا خطرناک پھیلاؤ، وائرس مزید 57 جانیں لے گیا۔ 24 گھنٹوں میں 3787 نئے کیسز رپورٹ ہوئے۔ این سی او سی کے مطابق ملک بھر میں مثبت کیسز کی شرح 6.3% رہی۔ تحصیل ہیڈ کوارٹر اسپتال احمد پور سیال میں ملازمین کی کرپشن، کورونا ویکسینیشن فارم کے عوض 50 روپے وصول کرنے لگے۔ انتظامیہ نے کارروائی کی بجائے چپ سادھ لی۔ محکمہ ریلوے کی غفلت، اوسطا محمد تا جیکب آباد لاڑکانہ سیکشن پر جاری ریل سروس بند، لاکھوں افراد ریل کی سستی اور محفوظ سواری سے محروم۔ سیون میں حضرت لال شہباز قلندر کا مزار کھول دیا گیا۔ زائرین کے لیے ماسک پہننا لازم قرار، انتظامیہ نے سماجی فاصلے کی پابندی بھی ضروری قرار دے دی۔ شادی کی خوشیاں ماتم میں تبدیل، کوہاٹ کے علاقہ جواکی بانڈا میں شادی کی تقریب میں فائرنگ، 2 افراد قتل جبکہ 5 شدید زخمی ہو گئے۔ دیپال پور کے نوائی علاقے فخر ٹاؤن میں خاتون کے قتل کی لرزہ خیز واردات، سسرالیوں نے بہو کو موت کے گھاٹ اتار دیا۔ تحقیقات کا آغاز، وزیر آباد میں موٹر سائیکل سواروں کی فائرنگ سے نوجوان قتل۔ تیز رفتار قیمتی جانیں نگل گئی، شاہکوٹ میں خوفناک ٹریفک حادثہ، 3 مسافر موت کے منہ میں چلے گئے۔ تبدیلی کی گونج بنوں کے پہاڑی علاقوں تک نہ پہنچ سکی، جہانگیر لکی کے پرائمری اسکول کی چھت اور دیواریں خستہ حال، مستقبل کے معماروں کی زندگیاں داؤ پر لگ گئیں، انتظامیہ بے خبر۔ سندھ کے شہر گمبٹ کے نواحی علاقے کا واحد سرکاری گرلز اسکول بند، طلباء تعلیم سے منہ موڑنے لگے، انتظامیہ خاموش تماشائی بن گئی۔ مظفر گڑھ میں مٹی سے بھری ٹرالیوں نے علاقہ مکینوں کی زندگی اجیرن بنا دی، اڑتی گرد و غبار سے علاقہ مکینوں کا سانس لینا دشوار، انتظامیہ لاپتہ۔ عارف والا میں مونسون شجرکاری مہم تو جاری، محکمہ جنگلات نے شجرکاری مہم کے دوران نہروں کے کناروں کو نظر انداز کر دیا۔ قدرت مہربان، پنجاب کے مختلف علاقوں میں بارش، مرید کے فاروق آباد، فورٹ عباس اور بورے والا میں جل تھلیٹ، گرمی کی چھٹی، موسم خوشگوار۔ شہداء اور غازیوں کو سلام، کوٹ رادھا کرشن کے نظر سپرد شہید حوالدار محمد عمران نے مادر وطن کے لیے اپنی جان کا نذرانہ پیش کیا، بیٹے کی شہادت پر والدین کا سر آج بھی فخر سے بلند۔
السلام علیکم، علاقائی خبرنامہ کے ساتھ میں ہوں اعتزاز نقی۔ دعا ہے رب کریم آقائے دو جہاں حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صدقے دنیا کو کورونا وائرس سے محفوظ فرمائے، آمین۔ معاشرے میں عدم برداشت کی انتہا ہو گئی، مختلف شہروں میں معمولی تنازع پر گولیاں چل گئیں، مختلف واقعات میں 7 افراد سے جینے کا حق چھین لیا گیا۔ شادی کی خوشیاں ماتم میں تبدیل ہو گئیں۔ کوہاٹ کے علاقہ زواکی بھانڈا میں شادی کی تقریب میں گولیاں چل گئیں، 2 افراد قتل جبکہ 5 شدید زخمی ہو گئے۔ پولیس نے ملزمان کو گرفتار کر کے مقدمہ درج کر لیا۔ سوابی کے نوائی گاؤں میں فائرنگ سے ایک شخص کو قتل کر دیا گیا۔ چارسدہ کے علاقہ تنگی میں فائرنگ کے نتیجے میں ایک شخص جان سے گیا۔ ڈیرہ اسماعیل خان کی تحصیل پنیالہ میں فائرنگ سے ایک شخص قتل اور ایک زخمی ہو گیا۔ دیپال پور کے نوائی علاقے فخر ٹاؤن میں خاتون کے قتل کی لرزہ خیز واردات ہوئی، سسرالیوں نے بہو کو موت کے گھاٹ اتار دیا۔ پولیس نے قتل کی تحقیقات کا آغاز کر دیا۔ وزیر آباد میں موٹر سائیکل سواروں نے فائرنگ کر کے نوجوان کو قتل کر دیا۔ پولیس نے تحقیقات کا آغاز کر دیا ہے۔ ضلع بنو کے السلام علیکم، علاقائی خبرنامہ کے ساتھ میں ہوں اعتزاز نقی۔ السلام دو جہاں حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، دعا ہے رب کریم کورونا وائرس سے محفوظ فرمائے، آمین۔ معاشرے میں عدم برداشت کی انتہا ہو گئی، مختلف شہروں میں معمولی تنازع پر مختلف واقعات میں 7 افراد سے جینے کا حق چھین لیا گیا۔ شادی کی خوشیاں ماتم میں گولیاں چل گئیں، مختلف کے صدقے دنیا کو علاقہ زواکی بھانڈا میں شادی کی تقریب میں تبدیل ہو گئیں۔ کوہاٹ کے قتل جبکہ 5 شدید گولیاں چل گئیں، 2 افراد ملزمان کو گرفتار کر کے مقدمہ درج کر لیا۔ سوابی کے نوائی گاؤں میں فائرنگ سے ایک شخص کو قتل کر دیا، زخمی ہو گئے۔ پولیس نے کیا چارسدہ کے علاقہ ایک شخص جان سے گیا۔ تنگی میں فائرنگ کے نتیجے میں ڈیرہ اسماعیل خان کی تحصیل ایک شخص قتل اور ایک پنیالہ میں فائرنگ سے میں خاتون کے قتل کی نوائی علاقے فخر ٹاؤن زخمی ہو گیا۔ دیپال پور لرزہ خیز واردات ہوئی، سسرالیوں نے بہو کو موت کے گھاٹ اتار دیا۔ پولیس نے قتل کی تحقیق وزیر آباد میں موٹر سائیکل سوارات کا آغاز کر دیا، نوجوان کو قتل کر دیا۔ پولیس نے تحقیقات کا آغاز نے فائرنگ کر کے نوجوان کر دیا ہے۔ ضلع بنو کے السلام علیکم، علاقائی خبرنامہ کے ساتھ السلام میں ہوں اعتزاز نقی۔ قائد و جہاں حضرت محمد دعا ہے رب کریم مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کورونا وائرس سے محفوظ فرمائے، میں عدم برداشت کی انتہا ہو گئی، مختلف شہروں میں معمولی تنازع پر افراد سے جینے کا حق چھین لیا گیا۔ شادی کی خوشیاں ماتم میں گولیاں چل گئیں، مختلف کے صدقے دنیا کو شادی کی تقریب میں تبدیل ہو گئیں۔ کوہاٹ کے علاقہ زواکی بھانڈا میں گولیاں چل گئیں، 2 افراد ملزمان کو گرفتار کر کے قتل جبکہ 5 شدید سوابی کے نوائی گاؤں میں فائرنگ سے ایک شخص کو قتل کر دیا گیا۔ چارسدہ کے علاقہ زخمی ہو گئے۔ پولیس نے تنگی میں فائرنگ کے نتیجے میں ڈیرہ اسماعیل خان کی تحصیل کورونا وائرس سے محفوظ فرمائے، مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں عدم برداشت کی انتہا ہو گئی، مختلف شہروں میں معمولی تنازع پر افراد سے جینے کا حق چھین لیا گیا۔ شادی کی خوشیاں ماتم میں گولیاں چل گئیں، مختلف کے صدقے دنیا کو شادی کی تقریب میں تبدیل ہو گئیں۔ کوہاٹ کے علاقہ زواکی بھانڈا میں گولیاں چل گئیں، 2 افراد دعا ہے رب کریم سوابی کے نوائی گاؤں میں فائرنگ قتل جبکہ 5 شدید سے ایک شخص کو قتل کر دیا، زخمی ہو گئے۔ پولیس نے تنگی میں فائرنگ کے نتیجے میں کیا چارسدہ کے علاقہ ملزمان کو گرفتار کر کے قائد و جہاں حضرت محمد ساتھ میں ہوں اعتزاز نقی۔ السلام علیکم، علاقائی خبرنامہ کے ساتھ ڈیرہ اسماعیل خان کی تحصیل کورونا وائرس سے محفوظ فرمائے، مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہو گئی، مختلف شہروں میں عدم برداشت کی انتہا، معمولی تنازع پر لیا گیا۔ افراد سے جینے کا حق چھین شادی کی خوشیاں ماتم میں کے صدقے دنیا کو گولیاں چل گئیں، شادی کی تقریب میں علاقہ زواکی بھانڈا میں تبدیل ہو گئیں۔ کوہاٹ کے گولیاں چل گئیں، 2 افراد دعا ہے رب کریم
قتل جبکہ 5 شدید سے ایک شخص کو قتل کر دیا۔ سوابی کے نوائی گاؤں میں فائرنگ زخمی ہو گئے۔ پولیس نے ملتنگی میں فائرنگ کے نتیجے میں قائد و جہاں حضرت محمد امارات میں ہوں اعتزاز نے کی۔ السلام علیکم، علاقائی خبرنامہ کے ساتھ زمان کو گرفتار کر کے ڈیرہ اسماعیل خان کی تحصیل مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کورونا وائرس سے محفوظ فرمایا ہو گئی۔ مختلف شہروں میں عدم برداشت کی انتہا، معمولی تنازع پر لیا گیا۔ افراد سے جینے کا حق چھین شادی کی خوشیاں ماتم میں علم کے صدقے دنیا کو گولیاں چل گئیں۔ شادی کی تقریب میں گاکا زواکی بھانڈا میں تبدیل ہو گئیں۔ کوہاٹ کے گولیاں چل گئیں۔ 2 افراد دعا ہے رب کریم قتل جبکہ 5 شدید سوابی کے نوائی گاؤں میں فائرنگ سے ایک شخص کو قتل کر دیا، زخمی ہو گئے۔ پولیس نے ملتنگی میں فائرنگ کے نتیجے میں قائد و جہاں حضرت محمد امارات میں ہوں اعتزاز نے کی۔ السلام علیکم، علاقائی خبرنامہ کے ساتھ ڈیرہ اسماعیل خان کی تحصیل زمان کو گرفتار کر کے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کورونا وائرس سے محفوظ فرمایا۔ عدم برداشت کی انتہا، معمولی تنازع پر ہو گئی۔ مختلف شہروں میں لیا گیا۔ شادی کی خوشیاں ماتم میں افراد سے جینے کا حق چھین کر دی۔ رپورٹ کریں گے محمد اجمل۔ مظفر گڑھ کے نواحی تھانہ خان گڑھ کی حدود سلیم چوک تارکمہ نور خان روڈ پر مٹی لوڈ کرنے والی ٹرالیاں عوام کے لیے درد سر بن چکی ہے۔ نہ ترپال نہ پانی کا چھڑکاؤ، ٹرالی کے بیک گیٹ بند کرنا بھی ٹرالی مالکان کو گوارا نہیں۔ ضابطہ اخلاق کی خلاف ورزی کرتی ان ٹرالیوں سے مٹی گر کر خشک دھول کی شکل اختیار کر لیتی ہے، پھر یہی خشک دھول روڈ پر سفر کرنے والوں کے منہ پہ پڑتی ہے تو نہ کپڑے دیکھنے کے قابل ہوتے ہیں نہ چہرے۔ مٹی وغیرہ دیکھ رہے ہیں آپ، رات دن پریشانی ہوتی ہے، ایکسیڈنٹ وغیرہ ہو رہے ہیں، کوئی انتظامیہ کوئی پوچھنے والا نہیں ہے یہاں۔ علاقہ مکینوں نے کہا کہ ٹرالیوں کی اڑتی ہوئی دھول سے نہ صرف انسان بلکہ ان کے مکان اور باغات بھی متاثر ہیں، ہر طرف مٹی مٹی ہے۔ علاقہ مکینوں نے کہا کہ اس اڑتی ہوئی دھول کے سبب علاقہ میں دمہ، الرجی اور سانس کی بیماریاں پھیل چکی ہیں۔ علاقہ مکینوں نے مقامی پولیس، ڈی ایس پی ٹریفک اور محکمہ ماحولیات سے مطالبہ کیا ہے کہ ٹرالی مالکان کو بیک گیٹ بند کرنے، مٹی کے اوپر چھڑکاؤ کر کے ترپال ڈالنے کے ضابطہ اخلاق کا پابند بنایا جائے اور ضابطہ اخلاق کی خلاف ورزی کرنے والے ٹرالی مالکان کے خلاف قانونی کارروائی عمل میں لائی جائے۔ کیمرہ ٹیم کے ساتھ محمد اجمل، سچ نیوز، مظفر گڑھ۔ جہلم میں اشیاء خوردونوش کی قیمتوں میں ہوشربہ اضافہ کر دیا گیا۔ رپورٹ کر رہے ہیں بابر حسین۔ اشیاء خوردونوش کی قیمتوں میں ہوشربہ اضافے کی وجہ سے شہری بلبلاہٹ ہے، خصوصاً کوکنگ آئل اور گھی کی قیمتوں میں جو بے پناہ اضافہ کیا گیا۔ جہلم کے شہری بھی اس سے پریشان ہیں۔ میں کہتا ہوں ادو ادھا جہا اضافہ ہویا جناب، اگے 800 کا لینے ہوں 1800 کا لینے پہ۔ اسی غریب آدمیاں کی کریے، اینی مہنگائی ہے۔ عمران خان چنگا آیا ہوئے، اسی اور کھ نہیں کر سکتے، صرف کھان پین جہاں سستا کر دین، اسی الحمدللہ ووٹ نہیں دیا دے، جے نہ دے تو پھر اگلے 5 سال نہیں بنتا۔ ہر روز دن بدن سر اضافہ ہو رہا ہے، جبکہ ہائی کمان تک ان کو علم ہے۔ شیخ رشید صاحب کا ایک دفعہ خود میں نے بیان سنا کہ میرے کو علم ہے کہ مہنگائی بڑھ رہی ہے، مہنگائی بڑھ رہی ہے۔ جب آپ کو علم ہے تو پھر اس کی کیوں نہیں روک تھام آپ کراتے؟ یہ تقریباً 30 سے 35% اضافہ ہوا ہے، اور اس اضافے سے یہ نقصان ہوا ہے کہ جو لوگ آگے 3 لیٹر یا 5 لیٹر کی بوٹل لیتے تھے ہمارے سے، تو وہ ابھی لیٹر والی پہ آ گئے ہیں۔
और इससे काफ़ी ज़्यादा जो है वो खरीदो फरोख्त में फ़र्क पड़ा है। अगर महंगाई का यही आलम रहा तो गरीब का सांस लेना भी महाल हो जाएगा। तब्दीली सरकार के वादे कब वफा होंगे ये शहरी जरूर सोचते हैं। मेलसी में महंगाई का तूफान थम न सका। अशिया खुरनोश की कीमतों में आए दिन इजाफे से गरीब आवाम परेशानी से निढाल है। मोहम्मद शरीफ भट्टो की रिपोर्ट। बात की जाए मेलसी की तो मुल्क भर की तरह मेलसी में भी महंगाई का तूफान न थम सका। आटा, चीनी, दालें और घी समेत रोजमर्रा की 22 अशिया के मजीद महंगा होने से गरीब आदमी के साथ साथ मुतवस्सित तबके के लिए भी 2 वक्त की रोटी खाना मुश्किल से मुश्किल तर होता जा रहा है। शहरियों का कहना है कि तहरीके इंसाफ की हुकूमत महंगाई कंट्रोल करने में बिल्कुल नाकाम दिखाई देती है। शहरियों के साथ साथ महंगाई से दुकानदार भी परेशान नजर आते हैं। उनका कहना है कि चीनी और घी समेत दीगर अशियाए जरूरियात की कीमतों में रोज बरोज इजाफा की वजह से ग्राहकों की तरफ से बहस व तकरार में भी इजाफा हो गया है। तमाम दुकानदार बहुत परेशान बैठे हैं, ग्राहक ना होने के बराबर है। महंगाई काफी बढ़ चुकी है, इस वजह से ग्राहक बहुत परेशान है। शहरियों का कहना है कि रोजमर्रा इस्तेमाल की अशिया में 100% से जायद इजाफा हुआ है। इसी वजह से शहरी हुकूमतें वक्त से नाला दिखाई देते हैं। कैमरा टीम के साथ मोहम्मद शरीफ, सच न्यूज, मेलसी। तांदरियावाला में अशिया खुरनोश की कीमतें आसमान से बातें करने लगी हैं। रिपोर्ट करेंगे मोहम्मद एहसान। तांदरेवाला में अशिया खुर्दनोश की कीमतों में इजाफे के साथ मिसाला जात की कीमतों में भी बेपनाह इजाफा हो गया। प्राइस कंट्रोल कमेटियां मंजर से ही गायब हो गईं। शहरी रुल गए। तहसील तांदरेवाला और इसके कस्बात कंजवानी, गढ़फतशाह, रहमेशाह और किलियावाला में भी अशिया खुर्दनोश की कीमतों में इजाफे के साथ मुख्तलिफ मिसाला जात की कीमतों में भी खुद साख्ता इजाफा हो चुका है। घी, चीनी, दालें, चावल, बेसन, साबन व दीगर अशिया जरूरिया की कीमतें आपे से बाहर हो चुकी हैं। इंतजामिया की खामोशी और फील्ड एरिया के विजिट न करने से जखीरा अंदोजों की चांदी हो रही है, जबकि मुनाफाखोर सादा लो आवाम को दोनों हाथों से लूट रहे हैं, जिस पे मुख्तलिफ हलकों ने शदीद तशवीश का इजहार करते हुए आला हुकाम से शहरियों को फौरी रिलीफ फराहम करने का मुतालबा किया है। कैमरामैन मोहम्मद आतिफ इकबाल के साथ मोहम्मद एहसान, नुमाइंदा सच न्यूज, तांदलेवाला। नायक इमरान अब्बास शहीद का ताल्लुक चकवाल के कस्बा मुरीद से है। इस नौजवान ने 7 अप्रैल 2013 को मीरानशाह में दहशतगर्दों का मुकाबला करते हुए जामे शहादत नोश किया। देखिए राजा साकिब अब्बास की रिपोर्ट। सरजमीन चकवाल के नौजवानों ने अपने वतन की हिफाजत के लिए जानों का नजराना पेश करके मुल्क की हिफाजत की। नायक इमरान अब्बास शहीद का ताल्लुक भी चकवाल के इलाके मुरीद से है। नायक इमरान अब्बास शहीद वालदैन का इकलौता बेटा था, जिसकी शहादत पर उनकी वालदा को फ़ख्र है कि वो एक शहीद बेटे की माँ हैं। एक ही बेटा है जड़ा शहीद हो गया, तो मैं उसकी माँ वा। कभी और भी बेटे होंगे उस वतन होता है मैं कुर्बान कर देंगे। नायक इमरान अब्बास शहीद के बेटे को भी पाक आर्मी में जाने का शौक़ है और उसकी ख्वाहिश है कि वो भी अपने वालिद की तरह आर्मी में जाकर मुल्क की खिदमत करे। मेरा नाम मोहम्मद आन अब्बास है, मैं इमरान शहीद का बेटा हूँ और मुझे फ़ख्र है कि मेरे अबू शहीद हैं, हो गए हैं, और मैं भी बड़े होकर आर्मी में जाऊंगा और अपने मुल्क की हिफाजत करूंगा। नायक इमरान अब्बास शहीद ने मीरानशाह में दहशतगर्दों का मुकाबला करते हुए 7 अप्रैल 2013 को जामे शहादत नोश फरमाई। कैमरामैन रजत तनवीर हैदर के साथ रजत साकिब अब्बास, ब्यूरो चीफ सच न्यूज़, चकवाल। यहाँ पे वक्त हुआ एक ब्रेक का, हमारे साथ रहिएगा। डोडियाल में हज़रत इमाम सज्जाद अलैहिस्सलाम की शहादत के सिलसिले में जुलूस और मजालिस का एहतमाम किया गया। आसिफ अली की रिपोर्ट। डोडियाल में 25 मुहर्रम उल हराम नवासे रसूल ताजदार इमामत के चौथे सकून हज़रत इमाम सज्जाद सैयदुस साजिदीन की शहादत के सिलसिले में मजालिस और जुलूस निकाले गए। मदरसा मज़हरुल ईमान डोडियाल में इलामा अफजल हैदरी साहब ने शहादत नवासे रसूल और उसवाए मासूम पर मुफस्सल मजलिस पढ़ी। दिन भर मातमी जुलूसों और मजालिस का सिलसिला जारी रहा, जो कि इमाम बारगाह कसर सज्जाद में मुनक्कद हुआ। अंजुमन सजादिया रजिस्टर्ड डोडियाल, जो कि इस कदीमी जुलूस और मजालिस मुनक्कद करवाती है, जगह जगह पर अज़ादारों के लिए पानी, दूध और मुख्तलिफ अक़साम के मशरूबात की सबीलें और लंगर और न्याज का एहतमाम किया गया। इस मौके पर सिक्योरिटी के इंतहाई सख्त इंतजामात किए गए। जुलूस के रास्तों को मर्द और ख़वातीन के लिए अलग अलग रखा गया ताकि किसी किस्म के नाखुशगवार वाक़या से बचा जा सके। मातमी जुलूसों के दौरान ताबूत इमाम आली मकाम हज़रत इमाम सज्जाद भी बरामद किया गया, जो कि अपने मुकर्रर टाइम पर इमाम बारगाह कसर सज्जाद पहुँचकर इख्तिताम पजीर हुआ। कैमरामैन शाहिद वारसी के साथ आसिफ अली, सच न्यूज़, डोडियाल।
टोबा टेक सिंह में आईजी पंजाब के अहकामात पर डिस्ट्रिक्ट पुलिस ने एंटी विमेन हैरेसमेंट एंड वायलेंस सेल कायम कर दिया। सुल्तान सिद्धू की रिपोर्ट। आईजी पंजाब अनाम गनी के हुक्म पर डिस्ट्रिक्ट पुलिस ऑफिसर टोबा टेक सिंह राना उमर फरूक की निगरानी में थाना सिटी में एंटी वुमेन हरासमेंट एंड वायलेंस सेल बनाया गया। सेल में खवातीन के मुतल्लक जराइम की रोकथाम और मुकदमात की मेरिट पर तफ्तीश अमल में लाई जाएगी। सेल का इंचार्ज DSP बहारसन भट्टी, सुपरवाइजरी ऑफिसर इंस्पेक्टर मखदूम सफदर और इंचार्ज लेडी सब इंस्पेक्टर आबदा परवीन को मुकर्रर किया गया है। वुमेन सेल में ASI नसीन कौसर, लेडी कांस्टेबल आयशा मजीद, सिद्रा बानो और लेडी कांस्टेबल राबिया स्टाफ ड्यूटी सर अंजाम देंगी। DPO टोबा टेक सिंह राना उमर फरूक ने बताया कि जिला भर में पहली बार तशद्दुद का शिकार खवातीन के तहफ़्फ़ुज़ और फौरी इंसाफ की फराहमी के लिए दादरसी मरकज बराए खवातीन कायम किया गया है। उन्होंने बताया कि इसका मकसद खवातीन के मुतल्लिक जितने भी जराइम हो रहे हैं उनकी मुअस्सर अंदाज से तफ्तीश और खवातीन को इंसाफ की फराहमी को यकीनी बनाना है। एंटी वुमेन हरासमेंट डेस्क जो है इसका मकसद ये है कि वुमेन से रिलेटेड जितने भी क्राइम हो रहे हैं उनको इफेक्टिवली इन्वेस्टिगेट किया जाए, उनके प्रोसेस को तेज किया जाए। वुमेन सेल में खवातीन के लिए पीने का साफ पानी और बैठने का मुनासिब इंतजाम भी किया गया है। कैमरामैन अली हैदर के साथ सुल्तान महमूद, टोबा टेक सिंह। पाकिस्तान दुनिया के कपास पैदा करने वाले 60 ममालिक में से पैदावार के लिहाज से चौथे नंबर पर है। समीउल्लाह की रिपोर्ट। मुजफ्फरगढ़ महकमा ज़राअत पंजाब के तहत कपास की साफ चुनाई बारे खसूसी एडवाइजरी जारी कर दी गई। आलूदगी से पाक कपास के असूल से काश्तकार न सिर्फ बेहतर कीमत हासिल कर सकते हैं बल्कि मुल्क के लिए ज़्यादा ज़र मुबादला भी हासिल किया जा सकता है। कपास की गलत चुनाई से फुट्टी की क्वालिटी और मियार मुतासर होता है। कपास की चुनाई हमेशा उस वक्त करनी चाहिए जब पौधों से शबनम की नमी बिल्कुल ख़त्म हो जाए। चुनाई करने वाली खवातीन सर पर सूती कपड़ा लेकर बालों को अच्छी तरह ढांप कर चुनाई करें ताकि सर के बाल रुई में मिलकर रुई की क्वालिटी ख़राब ना हो। कपास को सिर्फ सूती कपड़ों की बोरियों में रखें। नवीद असमत कालू, डिप्टी डायरेक्टर ज़राई इत्तलात पंजाब का कहना है, महकमा ज़राअत पंजाब के तहत कपास की साफ चुनाई, ज़ख़ीरा और तरसील के लिए काश्तकारों की रहनुमाई की जा रही है। काश्तकारों से कहा जा रहा है कि आलाइशों से पाक कपास की चुनाई के लिए मजदूरी वज़न की बजाय साफ़ सुथरी चुनाई पर दी जाए। महकमा ज़राअत की फील्ड फार्मेशन को हिदायत जारी की गई हैं कि वो मौके पर जाकर फसल की चुनाई पर मामूर सुपरवाइज़र और चुनाई करने वाली औरतों को अमली तरबियत दें। कैमरा टीम के साथ समीउल्लाह, सच न्यूज़, मुजफ्फरगढ़। हाफिजाबाद में सिविल सोसाइटी की जानिब से अमन वॉक का एहतमाम किया गया। रिपोर्ट कर रहे हैं जफर इकबाल। हाफिजाबाद में सिविल सोसाइटी की जानिब से अमन वॉक का एहतमाम किया गया जिसमें हर शोबे जिंदगी से तल्लुक़ रखने वाले अफराद ने बड़ी तादाद में शिरकत की। अमन वॉक बनी की चौक से शुरू होकर मुख्तलिफ रास्तों से होती हुई थाना सिटी हाफिजाबाद पहुंचकर इख्तिताम पजीर हुई। अमन वॉक का मकसद शहरियों की जानब से हाल ही दिनों में कुरान पाक के वाक़े के बाद शहरियों में गमा गुस्सा फैलाया गया जिस पर हाफिजाबाद पुलिस की जानब से इंतहाई अच्छा किरदार पेश किया गया। कुरान मजीद के नुस्खे को जलाने वाले मुलज़म को फौरी तौर पर गिरफ्तार किया गया। इस मौके पर सिविल सोसाइटी की जानब से फवारा चौक में DSP सदर जैगम सना और DSP ट्रैफिक पुलिस नदीम अहमद भट्ट और SHO थाना सिटी हाफिजाबाद अहद हुसैन तारड़ को फूलों के हार पहनाए गए। कैमरामैन वारिस अली खां के साथ जफर इकबाल, सच न्यूज़, हाफिजाबाद। मुल्तान और गिरदोनवा में आवारा कुत्ते शहरियों के लिए खौफ का सबब बनने लगे। रिपोर्ट करेंगे अहमद काशिफ। मुल्तान और गिरदोनवा में आवारा कुत्तों के गौल शहरियों के लिए परेशानी का बाइस बने हुए हैं। सड़कों और गलियों में आवारा कुत्तों के गौल बच्चों और खवातीन पर हमलावर होते हैं। मुल्तान के इलाका गुलरेज कॉलोनी में भी आवारा कुत्तों ने स्कूल जाने वाले बच्चों पर हमला कर दिया। मौसूल होने वाली फुटेज में भी देखा जा सकता है कि स्कूल जाने वाले बच्चे गली से गुजर रहे हैं कि अचानक एक आवारा कुत्ते ने बच्चों पर हमला कर दिया। बच्चे खौफजदा होकर भागते हैं। एक बच्चे के हाथ में पानी की बोतल है जिसकी मदद से वो कुत्ते को भगाने की कोशिश भी करता है। खुशकिस्मती से बच्चा किसी संगीन हादसे का शिकार होने से तो बच गया, लेकिन गुज़िश्ता कई केसेस में आवारा कुत्तों के हमले से जख्मी होने वाले अपनी जान तक से हाथ धो बैठे हैं। शहरियों ने डिप्टी कमिश्नर से आवारा कुत्तों की तलफी बारे इकदाम करने की अपील की है। अहमद काशिफ, सच टीवी, मुल्तान। कोटदू म्यूनिसिपल कमेटी में कायम कोरोना वैक्सीनेशन सेंटर में सहूलियात का फुकदान है। इसहाक काज़मी की रिपोर्ट। कोटदू कोरोना वैक्सीनेशन सेंटर पर सहूलियात का फुकदान। वैक्सीन लगवाने के लिए हुकूमत की तरफ से नोटिस। शहरियों का रश लगने पर अमला की कमी का सामना। वैक्सीन सेंटर पर खवातीन और मर्दों की लंबी कतारें लग गईं। कोरोना SOPs पर अमल दरामद कराने के लिए इंतज़ामिया की तरफ से कोई इंतज़ामात नहीं। गर्मी और धूप में खड़ी खवातीन को परेशानी का सामना है। 3 रोज से लाइन में लगकर वैक्सीन लगने का इंतज़ार कर रहे हैं। अमला की कमी और छाँव व पानी की सहूलियत ना दी गई।
रश बढ़ने पर वैक्सीन लगवाने का अमल मुश्किल हो गया। असां सवेर दा 3 घंटे थी गए तक खड़े हैं भाई जान, कोई तां धुप्प पई छां कोई नहीं, ऊँ तो बाद सारी कोई सुनते भी नहीं, सिफारिश चलती है जे आंदे अपना सिफारिश मोबाइल कॉल कर वेंदे, सिफारिश जो अंदरों वेंदन, गरीबों को अंदरों वञण नहीं देंदे, धुप्प है गर्मी है पानी भी कोई नहीं। शहरियों ने आला हुकाम से मुतालबा किया है कि वैक्सीनेशन सेंटर और अमला बढ़ाया जाए। कैमरामैन काशिफ अली के साथ इसाक काज़मी, सच न्यूज़, कोटादू। रूरल हेल्थ सेंटर तिलंबा में वैक्सीनेशन का अमल जारी है, जहां पर लोगों की कसीर तादाद आने लगी। रिपोर्ट करेंगे अयाज अहमद। रूरल हेल्थ सेंटर तिलंबा में वैक्सीनेशन का अमल जारी है, जहां पर लोगों की कसीर तादाद रोजाना की बुनियाद पर वैक्सीन करवा रही है। रूरल हेल्थ सेंटर तिलंबा में रोजाना तकरीबन 400 से 500 लोगों की वैक्सीनेशन की जा रही है। खवातीन और मर्द हजरात के लिए अलग-अलग डेस्क कायम किए गए हैं। SMO डॉक्टर आसिफ इमाम का कहना था कि अवाम के लिए जरूरी है कि वह कोरोना से बचाव के लिए वैक्सीन लगवाएं और नॉर्मल जिंदगी गुजारें। तिलंबा रूरल हेल्थ सेंटर में अब तक 9000 लोगों की वैक्सीनेशन हो चुकी है। कोरोना वायरस की चौथी लहर गुज़श्ता 3 लहरों से ज्यादा खतरनाक साबित हो सकती है। अवाम के लिए जरूरी है कि वो कोरोना से बचाव के लिए वैक्सीन लगवाएं। सेहत इंसाफ कार्ड के हामिल अफराद को इलाज मुआलजा में शदीद मुश्किलात का सामना है। देखिए ज़हूर दुरानी की रिपोर्ट। हुकूमत की जानिब से सेहत इंसाफ कार्ड प्रोग्राम का इजरा यकीनन एक ऐसा इक़दाम है जिसका मकसद गरीबों को इलाज मुआलजा की मुफ्त सहूलियात फराम करना है। मगर लिया में सेहत इंसाफ कार्ड के हामिल अफराद को सेहत इंसाफ कार्ड के तहत रजिस्टर्ड निजी अस्पतालों में इलाज मुआलजा में शदीद मुश्किलात का सामना है। नवाई इलाका पीर जगी का रिहायशी जुल्फकार नामी शख्स बीवी की तबीयत बिगड़ने पर निजी अस्पताल लाया तो अस्पताल इंतजामिया ने सेहत इंसाफ कार्ड के तहत इलाज करने से इनकार कर दिया, जबकि निजी अस्पताल सेहत इंसाफ कार्ड के तहत रजिस्टर्ड भी है। दिहाड़ीदार शख्स निजी अस्पताल के डॉक्टर्स की हठधर्मी के बायस अपनी कुल जमा पूंजी बीवी के ऑपरेशन पर खर्च कर चुका। मुतासरा शख्स ने सेहत इंसाफ कार्ड की सहूलत होने के बावजूद अस्पताल इंतजामिया की जानिब से ऑपरेशन की रकम लिए जाने पर हुकाम बाला से कार्रवाई की अपील की है। कैमरामैन जुबैर लश्करानी के साथ ज़हूर दुरानी, सच न्यूज़, लिया। बर्रे सगीर के अजीम सूफी बुजुर्ग हजरत कलंदर लाल शहबाज के मज़ार को ज़ायरीन के लिए खोल दिया गया। रिपोर्ट करेंगे शहमीर खान। सिंध हुकूमत के नोटिफिकेशन के बाद महकमा औकाफ ने बरसगीर के अजीम सूफी बुजुर्ग हजरत सखी लाल शहबाज कलंदर रहमतुल्लाह अलैह की मज़ार को आम ज़ायरीन के लिए खोल दिया। ज़ियारत के लिए ज़ायरीन अकीदतमंद आशिकाने कलंदर बड़ी तादाद में दरगाह पर पहुँच गए। याद रहे कि कोरोना वायरस वबा के चौथी लहर के बाद सिंध हुकूमत ने 5वीं बार दरगाह लाल शहबाज कलंदर रहमतुल्लाह अलैह को आम ज़ायरीन के लिए मुकम्मल तौर पर बंद किया था, जबकि 2 माह के बाद सिंध हुकूमत की जानिब से आम ज़ायरीन की ज़ियारत से पाबंदी खत्म करके SOP के तहत दरगाह हजरत लाल शहबाज कलंदर रहमतुल्लाह अलैह को खोल दिया गया है। इस हवाले से ज़ायरीन और शहरियों ने सच न्यूज़ से गुफ्तगू करते हुए कहा कि यार बहुत अच्छा महसूस कर रहे हैं कि चलो ये अल्लाह पाक का बड़ा करम है, फजल है कि ये हमारे रिज़्क़ के भी दरवाजे खुलेंगे, क्योंकि अल्लाह के वली हैं। ये नाराज़ थे हमसे, अल्लाह भी हमसे नाराज़ है। जो दुनिया के हालात हैं, अगर ये राज़ी हो जाएंगे तो सारी दुनिया में अल्लाह ताला अमन पैदा कर देगा और मसले भी हल हो जाएंगे सबके। दरगाह पर आने वाले ज़ायरीन के लिए मास्क और कोरोना वैक्सीन कार्ड होना लाजमी करार दिया गया है। मास्क के बगैर और उम्र रसीदा लोगों की दरगाह में दाखिले पर पाबंदी आयद कर दी गई है। कैमरामैन साजिद अली के साथ शहमीर खान, ओठो, सच TV न्यूज़, 7 शरीफ। कोरोना मुस्बत केसेस की शरह 6.33% हो गई। आलमी वायरस मजीद 57 पाकिस्तानियों की जिंदगी निगल गया। नेशनल कमांड एंड ऑपरेशन सेंटर की ताज़ा तरीन अदाद-ओ-शुमार के मुताबिक गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान 59,775 नए टेस्ट किए गए। मुल्क भर में अब तक 1,79,31,365 अफराद के टेस्ट किए जा चुके हैं। पाकिस्तान में कोरोना से मरने वालों की तादाद 26,035, जबकि कोरोना के तस्दीक शुदा केसेस की तादाद 11,71,578 हो गई, जिनमें से 5,606 मरीजों की हालत तशवीशनाक है। अब तक 10,55,467 मरीज सेहतियाब भी हो चुके हैं। पाकिस्तान भर में गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान 13,88,268 अफराद को कोरोना वायरस की वैक्सीन दी गई। अब तक कुल 5,81,56,714 वैक्सीन की खुराकें दी जा चुकी हैं, जबकि अब तक 1,80,04,529 अफराद की मुकम्मल वैक्सीन हो चुकी है। फलों की नेमत से मालामाल सिंध की धरती कोट डीजी में खजूर के बागात खास अहमियत रखते हैं। रिपोर्ट कर रहे हैं मोहम्मद रमजान। पाकिस्तान सरसब्ज और शादाब है और सूबा सिंध भी सरसब्ज और शादाबी में अपनी मिसाल आप है। ज़िला खैरपुर मिरस खजूर की वजह से पूरी दुनिया में मशहूर है और तहसील कोड़जी के इलाके जिस्कानी में ज़राअत के माहिर
और साबिक निगरान सूबाई वजीर सिंध रईस गुलाम कासिम जिस्कानी के बेटे मुर्तज़ा जिस्कानी ने 5 साल पहले दुबई से खजूर के 15 अक़साम लेकर जिस्कानी में अपनी ज़मीन पर लगाए और इस साल उन बेहतरीन खजूर का फसल तैयार हो गया है, जिसकी वजह से कई अफराद को रोज़गार भी मिला और लोगों को अच्छी खजूर भी मिली और मुल्क समेत दीगर ममालिक में कारोबार हुआ। खजूर के आनर मुर्तज़ा जिस्कानी ने सच न्यूज़ से बात करते हुए कहा कि यहाँ पर हमने ये खजूर के बागात लगाए हुए हैं। इससे पहले हमारे पास जो थे वो असील के बागात थे जो हो गए और वो अल्हम्दुलिल्लाह अब फ्रूटिंग पे आ गई हैं और बहुत अच्छे ही उसके जो है वो रिजल्ट्स मिले हैं और भी कोशिश कर रहे हैं कि उसको हम और ज़्यादा बेहतर से बेहतर कर सकें। मंडियों से मुकाबला करने के लिए नई इक़साम और नई टेक्निक ज़रूरी है। कैमरा टीम के साथ मोहम्मद रमजानुज्जन, सच न्यूज़, कोटिजी। कारफवाला में मानसून शजरकारी मुहिम का सिलसिला तो जारी है, जबकि नहरें शजरकारी से महरूम हैं। महकमे जंगलात ने शजरकारी मुहिम के दौरान नहरों को यकसर नज़रअंदाज कर दिया। जावेद रजा की रिपोर्ट। आरिवाला में जारी मानसून शजरकारी मुहिम के दौरान भी नहरें महकमा जंगलात और इंतजामिया की नज़रों से ओझल। नहरों के किनारे दरख्तों से महरूम होने के बावजूद भी शजरकारी मुहिम का हिस्सा न बन सके, जबकि नहरें सहराई इलाके का मंजर पेश कर रही हैं। ये पहले जो दरख्त पौधे वगैरह लगाए थे सब तो हो गए, चोरी हो चुके हैं। अब उसके बाद ना कोई पौधा लगाया है ना कोई लगा नजर आ रहा है। ये आगे तक देखो पीछे तक देखो कोई किसी किस्म का भी पौधा नहीं लगा हुआ। महकमा जंगलात के मुताबिक रवां साल के अख्ताम तक आरिवाला तहसील में 3 लाख पौधे लगाए जाएंगे। लिहाजा महकमा जंगलात को चाहिए खसूसी तवज्जो देते हुए नहरों पर भी ज्यादा से ज्यादा दरख्त लगाए ताकि नहरों के पुश्ते भी मजबूत हों और क्लीन एंड ग्रीन पाकिस्तान का ख्वाब भी मुकम्मल हो सके। कैमरा टीम के साथ जावेद रजा वट्टू, सच टीवी, आरिफ वाला। वज़ीर आला पंजाब का प्रोग्राम खिदमत आपकी सिर्फ शहरों तक महदूद रह गया। देहाती इलाकों में आवाम जिंदगी की बुनियादी सहूलियात से महरूम हैं। उमर हयात की रिपोर्ट। आने वाले इंतजामिया की गफलत और लापरवाही से वज़ीर आला पंजाब का प्रोग्राम खिदमत आपकी दहलीज पर सिर्फ फोटो सेशन तक महदूद होकर रह गया। तरक्की के इस दौर में आज भी कच्चा खूह का नवाई इलाका 15 अनवार सवा वाला बुनियादी सहूलियात से महरूम होने के साथ साथ सेवरेज सिस्टम का मसला इंतहाई संगीन सूरत इख्तियार कर चुका है। सेवरेज का नाला बंद होने से गंदा पानी घरों में दाखिल होना शुरू हो गया, जिससे कई मकानात के गिरने का खदशा पैदा हो गया। गलियों में पानी जमा होने से लोगों का घरों से निकलना इंतहाई मुश्किल हो गया। पैदल चलने के साथ साथ नमाजियों को नमाज की अदायगी के लिए मस्जिद में जाना इंतहाई दुश्वार हो गया। इलाका मकीनों ने आला हुकाम से मुतालबा किया है कि निकासी आब का मसला जल्द अज जल्द हल करवाया जाए। कमालिया के नवाई इलाका जक्कड़ में सफाई का निज़ाम दरहम बरहम होने के बाद जगह जगह गंदगी के ढेर लग गए। कचरे से उठने वाले ताफुन से इलाका मकीन परेशानी में मुब्तला है। गुलाम अब्बास की रिपोर्ट। कमालिया तहसील म्यूनसिपल कमेटी की गफलत और लापरवाही सामने आ गई। नवाही इलाका जक्खड़ में जगह जगह कचरे के ढेर और गंदे पानी के जोहड़, सेवरेज की खुली नालियां और उनमें जमा कचरा। जक्खड़ में ये मनाजर किसी एक महल्ला के नहीं बल्कि पूरे इलाके की कुछ ऐसी ही सूरत हाल है। दिन लोग बुखार, हेपेटाइटिस ऐसी मर्ज का शिकार हैं और बदबू का खदशा यहाँ पे बहुत ज़्यादा होता है। राह गुजर जो भी होते हैं तंग हो रहे हैं यहाँ से और कोई भी उठाने के लिए इंतजामिया नहीं आ रही। कचरे से उठता ताफुन माहौल को भी आलूदा कर रहा है। इलाका मुकीनों के मुताबिक मुतअद्दिद बार इंतजामिया और म्यूनसिपल कमेटी को दरखास्तें दी गई, लेकिन उन पर आज तक अमल दरामद ना हो सका। इलाकाई खबरनामा से फिल वक्त इतना ही। मज़ीद खबरों और अपडेट्स के लिए विजिट कीजिए हमारी वेबसाइट sach.tv.pk। देखते रहिए सच न्यूज़।